Second year English, lecture number 39, topic The Man Who Was a Hospital, chapter number 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, second year class? I hope you will be fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and enjoying a very safe and sound health. And may Allah keep you safe and healthy forever. Ameen summa ameen. Students, welcome in my class. And let's continue. Let's start our chapter number 6. And its author's name is Jerome K. Jerome. Dear students, Jerome K. Jerome, he was an English writer and humorist. Humorist समझते बेटा आप लोग? Who gives comic ideas in his writings, ठीक है? Who try to give message, or you can say his point of view, in a very humorous way. He was born on 2nd May 1859 at UK, and he was died on 14th June 1927 in UK as well. And his full name was Jerome Klapka Jerome, ठीक है? And his spouse बेटा कहते हैं wife को, ठीक है? His spouse name was Georgina Elizabeth Henrietta Stanley Maris. It was her full name. So beta, in this essay, and as we know that its name was The Man Who Was a Hospital, the author gives a fine example of humorous exaggeration, ठीक है? Humorous exaggeration है इसमें. The author wishes the reader to have a laugh at his expense, but he was not wholly wrong in concluding that he was suffering from almost all diseases. What does the poet want to say? That a person who narrates this story, who narrates his own story, he was suffering from almost all diseases because he considered it. वो समझता है कि वो सारी उसमें diseases है. क्यों समझता है? Because he reads a book which has all the diseases name and their, you can say, symptoms as well. So when he reads a book, so he thought that he had all that symptoms, he had all that diseases suffering from somewhere, या किसी भी वक्त या अपनी ज़िंदगी में किसी टाइम पे उसको ये सारी डिजीज़ेस रही हैं, ठीक है? So what does the poet actually wants to give us? The idea that behind all this fantastic exaggeration is a sound advice. So बेटा वो advice क्या है? Don't stuff your head with things you don't understand. ठीक है, हमें उन चीज़ों में नहीं घुसना चाहिए, उन चीज़ों में नहीं इंटरफेयर करना चाहिए जिसके बारे में हम समझ नहीं है, वरना जो है you will be suffer a lot in the end. ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा एंड में परेशानी होगी. So बेटा let's start. It was my liver that was out of order. I knew it was my liver that was out of order because I had just been reading patent liver pill circular in which were detailed the various symptoms by which a man could tell when his liver was out of order. I had them all. Okay beta, the author read a book where what was reading painted का मतलब क्या होता है बेटा? Registered. ठीक है, अब उसने क्या बेटा पढ़ा कि एक सर्कुलर पढ़ा, ठीक है, जिसमें लीवर पिल के बारे में बताया गया था और उसकी जो है वो सिम्टम्स बताई गई थी. सो उसके पढ़ने के बाद उसको क्या पता चला? इन विच वर डिटेल द वेरियस सिम्टम्स बाय विच अ मैन कुड टेल व्हेन हिज लीवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर. जिसमें एक आदमी बता सकता है कि उसका लीवर जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर है या नहीं है, मीन टू से कि इज इट वर्किंग प्रॉपरली और नॉट. सो ही आफ्टर रीडिंग द बुक ही केम टू द कंक्लूजन दैट हिज लीवर वाज नॉट वर्किंग प्रॉपरली. ठीक है बेटा? So it is a most extraordinary thing, but he never read a patent medicine advertisement without being impelled to the conclusion that I am suffering from the particular disease therein dealt with in its most virulent form. अच्छा बेटा, अब उसमें क्या कहता है? पहले तो मैं इसको मीनिंग बता दूँ आप लोगों को. Extraordinary mean unusual, ठीक है, strange, और impelled mean compel, मजबूर करना, urge, उकसाना, ठीक है. कंक्लूजन आपको पता है कि रिजल्ट होता है, नतीजा हम इसको कह सकते हैं. सो सफरिंग फ्रॉम, टू बी इल विद, ठीक है, सफ़र होता है इल, आप उसमें मुब्तला हो उस चीज़ में. डेल्ट विद, कॉप्ड विद, ठीक है, डेल्ट विद मीन कॉप्ड विद, काबू पाना. ओके, विरुलेंट मीन बिटर, हॉस्टाइल, ठीक है बेटा. डायग्नोस मीन एनालिसिस. ओके, correspond, match, compatible. And sensation mean
एम्बियंस। ठीक है बेटा, मैंने पूरे पैराग्राफ का जिसमें डिफिकल्ट वर्ड्स थे आई हैव टोल्ड यू दे सिमिलर मीनिंग्स। तो बेटा इसमें हम क्या कहेंगे अब इसको कि इट इज़ अ मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, कि बहुत ही खिलाफ तवक्को ये गैर मामूली बात है कि बट आई नेवर रेड अ पेटेंट मेडिसिन एडवर्टिजमेंट। कहते हैं कि मैंने कभी भी कोई इश्तिहार ऐसे नहीं पढ़ा कि जिसमें ख़ास बीमारी जो है वो विदाउट बीइंग इम्पेल्ड टू द कंक्लूजन दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर डिजीज़, के इस नतीजे पर मजबूर किए जाने के बगैर मैंने कभी दवाई का कोई वाज़िह इश्तिहार नहीं पढ़ा कि इसमें मज़कूरा या जो भी ख़ास बीमारी है अपनी शदीद तरीन शक्ल में मुझे लाहक है। मीन टू से कि कहता है कि मैंने कभी ऐसा कोई इश्तिहार जो इस सेंस में नहीं पढ़ा। ठीक है, ओके। द डायग्नोसिस सीम्स इन एवरी केस टू रेस्पॉन्ड होता है एग्जैक्टली। तो कहते हैं जो भी मैंने तशखीस पढ़ता हूँ या बीमारी पढ़ता हूँ उसमें जो तशखीस होती है वो जो उसमें सेंसेशन होती है, फीलिंग्स होती है, वो वैसे ही होती है जैसे कि मैंने महसूस की होती है कि मैं उन फीलिंग्स में से गुजर चुका होता हूँ। और जो बेटा वो उसमें एडवर्टीज़मेंट है उसमें जो कुछ उन्होंने फीलिंग्स बताई होती हैं आपने देखा ही होगा अक्सर कि क्या क्या होता है। तो कहता है कि वो सारी चीज़ें जब मैं फ़ील करता हूँ तब मैं उस रिज़ल्ट पे पहुँचता हूँ कि हाँ भाई मैं इस बीमारी का शिकार रहा हूँ। ठीक है बेटा। सो आई रिमेंबर गोइंग टू द ब्रिटिश म्यूजियम वन डे टू रीड अप द ट्रीटमेंट फॉर सम स्लाइट एलमेंट ऑफ विच आई हैड अ टच हे फीवर। अच्छा बेटा, एक हे फीवर भी था। कहते हैं कि हल्का सा जिसमें बुखार होता है, ठीक है, तपे हे फीवर होता है, तपे काही का उर्दू में बेटा इसको ये कहते हैं, टिप का जो एक तरह से ये फीवर ही होता है। सो कहते हैं कि मैं जो है वहाँ पे गया। ओके, आई रिमेंबर गोइंग टू द ब्रिटिश म्यूजियम वन डे टू रीड अप द ट्रीटमेंट ऑफ फॉर सम स्लाइट एलमेंट। बेटा एलमेंट क्या है? इलनेस। ठीक है, अच्छा कहता है कि मुझे ज़रा सी हल्का सा उसमें पढ़ने के बारे में गया था कि उसको हल्का सा बेटा फीवर होगा, तो ब्रिटिश म्यूजियम चला गया। हालांकि आई थिंक ही शुड गो टू द डॉक्टर, ही शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। ठीक है, बट रादर बिसाइड कंसल्टिंग अ डॉक्टर ही वेंट टू द ब्रिटिश म्यूजियम। वहाँ पे रीडिंग रूम था बेटा, वहाँ पे बैठ के उसने वो बुक पढ़ना शुरू कर दी। I fancy it was. I got down the book and read all I came to read, and then in an unthinking moment, I idly turned the leaves and began to indolently study diseases. अब बेटा उसने एक डिजीज़ के बारे में पढ़ना था, लेकिन ऐसा ऐसा वो बाकी डिजीज़ के बारे में भी उसने पढ़ना शुरू कर दिया। ठीक है, ओके। I forget which was the first distemper. I plunged into some fearful, devastating scourge. I know, and before I had glanced half down the list of premonitory symptoms. Okay बेटा, premonitory कौन सी होती हैं? Forewarning या आप कह सकते हैं कि threatening। ठीक है, symptoms इलामात होती हैं, जो साइन होते हैं। तो कहते हैं कि मैं जो है वो इसका मुझे पता चल गया था कि जो इसमें इलामात थी, ठीक है। I forget which was the first distemper I plunged into. ओके बेटा, डिस्टेम्पर क्या है? डिजीज़। क्लियर हो गया? I forget, मैं भूल गया, which was the first distemper I plunged into. Plunge means sink, कि कहते कि इस बारे में मैं बेखबर हो गया कि कौन सी पहली बीमारी थी। I forget which was the first distemper, के पहले कौन सी डिजीज़ थी plunge into, जिसके बारे में मैंने पढ़ना था या जिसके बारे में जो मुझे लाहक हुई थी, कि पहली कौन सी डिजीज़ थी जो कि मुझे हुई थी। सम fearful devastating scourge, कहते कुछ तो बहुत ही खौफनाक थी। scourge मीन प्लेग, ट्रबल, तो बहुत ही कुछ खौफनाक उसमें थी, डिवास्टेटिंग थी, तबाहकुन थी। आई नो एंड बिफोर आई हैड ग्लांस हाफ डाउन द लिस्ट ऑफ द प्रीमॉनिटरी सिस्टम। कहता अगर मैं उनमें से जो है किसी के जो इलामात हैं, ठीक है, उसके बारे में मज़ीद पढ़ता, इट वॉज बॉर्न इन अपॉन मी दैट आई हैड फेयरली गॉट इट। तो कहता कि मुझे ये पता चल चुका था या मुझे इस चीज़ का इदराक हो गया था कि जो है वो ये मर्ज़ जो है ये मुझे लाहक हो चुका है। इट वॉज़ बॉर्न इन अपॉन मी दैट आई हैड फेयरली गॉट इट। फेयरली गॉट इट मीन कि मुझे ये मर्ज़ लाहक हो चुका है। बेटा सिम्टम्स पढ़ने से उसने सोचा कि दैट आई हैड ऑल दिस सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज, सो ही फेल्ट दैट आई वॉज सफरिंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिजीज़। क्लियर? I sat for a while frozen with horror, and then in the listlessness of despair I again turned over the page. बेटा वो बैठा वहाँ पे जो है वो रीडिंग रूम में पढ़ता जा रहा है। He is you can say reading about different diseases, and he thought that he had been suffering from all these diseases time to time. ठीक है, so horror mean terror, shock, and listlessness mean indolence. ठीक है, indolence, sorry,
या इनडिफरेंस जैसे बेजारी होती है उसको लिस्टलेसनेस कहते हैं। इन द लिस्टलेसनेस ऑफ डिसअपीयर आई अगेन टर्न ओवर द पेजेस। बेटा अब वहाँ पे ऑल्दो ही गॉट टेरिफाइड बट ही डिडंट स्टॉप स्टडिंग अबाउट द डिजीज़। ठीक है, अब वो पढ़ता जा रहा है डिफरेंट डिजीज़ के बारे में। आई अगेन टर्न ओवर द पेजेस पढ़ता जा रहा है। आई केम टू टाइफाइड फीवर, रीड द सिम्टम्स, डिस्कवर दैट आई हैड टाइफाइड फीवर, मस्ट हैव हैड इट फॉर मंथ्स विदाउट नोइंग इट। अब बेटा आप उसने क्या उसको समझ आई कि वो जो है वो उसको टाइफाइड फीवर भी रहा है, क्योंकि उसने टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स पढ़े, उसको लगा कि हाँ भाई मुझे ये कभी किसी टाइम में टाइफाइड फीवर था एंड आई डिडंट नो अबाउट इट, मुझे ये पता ही नहीं चला। वंडर्ड व्हाट एल्स आई हैड गॉट, टर्न्ड अप सेंट विटिस डांस। बेटा अब ये जो सेंट वाइटिस जो डांस है, ठीक है बेटा, वाइटिस डांस, दिस इज़ द नेम ऑफ डिजीज़। ये बेटा एक डिजीज़ है, ठीक है, और इसमें जो है वो बॉडी को जो है वो कैसे ड्रग्स लगते हैं, झटके लगते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने 3 पिक्चर्स लगाई हैं, इसमें से बेटा जो सबसे फर्स्ट वाली है लेफ़्ट साइड पे, ठीक है, दिस इज़ इट शोज़ दैट द पीपल वर सफरिंग फ्रॉम जर्किंग, उनको बेटा झटके लग रहे हैं। ठीक है, तो दे आर यू कैन से फेसिंग दिस डिजीज़। So found as I expected that I had that too। अब बेटा उसने उस डिजीज़ के बारे में पढ़ा, so he thought that yes he had the symptoms of that disease as well। ठीक है, so that I had that too, began to get interested in my case and determined to sift it to the bottom। ठीक है बेटा, sift mean examine। अब बेटा जैसे उसको पता चला कि yes I have the symptom, so he you can say studied further about different more diseases and so started alphabetically। अब बेटा उसने alphabetically पढ़ना शुरू कर दिया। Read up again and learned that I was sickening for it। ठीक है बेटा, अब उसने जैसे इसको पढ़ा तो उसको पता चला कि yes to be starting to have an illness, हाँ भाई मुझे तो ये बीमारी थी। ओके, and that the acute stage would commence in about another fortnight, और उसके ये कि आई वॉज सिकनिंग फॉर इट एंड दैट द acute स्टेज, acute में बेटा शदीद, सीरियस, वो कहता है जो शदीद इसका हमला है वुड कमेंस इन अबाउट अनदर फोर्टनाइट, अगले 2 हफ्तों में उसको जो है ना मज़ीद इसका जो है वो हमला इसके ऊपर हो सकता है, इस बीमारी का अटैक मज़ीद हो सकता है। ठीक है, ओके, ब्राइट्स डिजीज़ आई वॉज रिलीव्ड टू फाइंड। ओके बेटा, ब्राइट्स डिजीज़ भी है, इज़ द नेम ऑफ अनदर डिजीज़। ठीक है, ब्राइट्स डिजीज़ इसमें क्या था बेटा कि यू कैन से एक बीमारी इसमें बेटा जो आपके गुर्दे होते हैं ना, ठीक है, उसमें जो है वो स्वेलिंग हो जाती है। तो इसको जो ब्राइट, इसको जो इंग्लैंड था, ठीक है, उसका एक डॉक्टर था, उसने जो बेटा इसको डिस्कवर किया था, उसका नाम था रिचर्ड ब्राइट। तो उसके नाम की वजह से इस बीमारी का नाम था ब्राइट्स डिजीज़। क्लियर? सो आई वॉज रिलीव्ड टू फाइंड आई हैड ओनली इन अ मॉडिफाइड फॉर्म एंड सो फॉर एज दैट वॉज कंसर्न आई माइट लिव फॉर ईयर्स। कहते कि मुझे लगा कि मुझे ये जो है वो काफ़ी अरसे से मैं इस बीमारी में मुब्तला रहा हूँ। कॉलेरा आई हैड विद स्फीयर कॉम्प्लिकेशंस एंड डिप्थीरिया आई सीम टू हैव बीन बॉर्न विद। कहते कि मुझे लगा कि कॉलेरा जो है, ठीक है, उसकी कॉलेरा समझते ना बेटा आप लोग कि हैज़ा जिसको कहते हैं, ठीक है, तो कहते हैं कि मुझे लगा कि वो इसमें मैं काफ़ी अरसे से लाहक था। कॉलेरा हैड विद स्फीयर कॉम्प्लिकेशन, इसमें कॉम्प्लिकेशंस थी, ठीक है, पेचीदगियाँ थी, तो कहता है मैं उसमें मुब्तला रहा हूँ। एंड डिप्थीरिया आई सीम टू हैव बीन बॉर्न विद, और कहता है मैं तो डिप्थीरिया से तो मैं जैसे लगता है कि मैं पैदाइशी तौर पर मुझे वो था, जब व्हेन आई वाज बॉर्न आई हैड डिप्थीरिया। ठीक है, तो डिप्थीरिया भी एक बीमारी है। ओके, नेक्स्ट आई प्लॉडेड कॉन्सेंटिशियसली थ्रू द 26 लेटर्स। अच्छा जी, कॉन्शियसली बेटा भी केयरफुली, अलर्टली, कहता है मैंने केयरफुली सारे 26 लेटर्स जो था वो जो 26 डिजीज़ के बारे में बेटा उसने पढ़ा। एंड द ओनली मेलोडी आई कुड कंक्लूड, मेलोडी मीन डिजीज़, बीमारी, आई कुड कंक्लूड आई हैड नॉट गॉट वॉज हाउस मेड्स नी। कहता है कि मैं फाइनली जब मुझे एक चीज़ का पता चला कि मुझे हाउसमेट नीज नहीं है, क्योंकि ये भी दिस इज़ द नेम ऑफ डिजीज़ जिसमें बेटा स्टूडेंट्स एल्बो, जिसमें जो घुटने का वाम या जोड़ जो होते हैं आपके, जैसे कि यहाँ पे मैंने 3rd पिक्चर में बेटा दिखाया है, हाउस में नी जो आपके घुटने हैं, ठीक है, दे आर डिस्टर्ब, यू गॉट पेन, स्वियर पेन इन दोज इन योर एंकल, ठीक है, इन योर नी, सॉरी।
तो बेटा आपके घुटने में शदीद दर्द होता है. सो दिस इज़ हाउस मेड्स. कहता है कि मुझे इसका बड़ा अफसोस हुआ कि भाई मुझे हाउस मेड्स नी क्यों नहीं है. क्लियर बेटा? इट्स इनफ फॉर टुडे. एंड यू कैन सी दैट the person, the author, he was quite, you can say, upset mind of person that he had reading the symptoms of all the diseases, and he thought that he was suffering from that disease, and he was suffering from this disease for many years, and he was born with a different disease. So beta, I think man should not he should not try to plunge in those things which he don't know. So beta, inshallah in next lecture we shall continue our lesson, and it is very much funny lesson, and I hope that you will all have enjoyed it very well. So beta, inshallah we shall meet tomorrow, and till then stay blessed and Allah Hafiz.